Good afternoon, everyone. I can see only three people have joined in, so we'll wait for 5 more minutes for other people to join in. You can ask your friends and inform them if they have not joined in to join in the lecture. Make sure all of you have a notebook and a pen in your hand because we'll be solving a lot of sums in this session. Also, please ask your friends to join in as soon as possible so we can start on the lecture. Mm. Songstar, what is your name? The person with ID Songstar. Pooja. Pooja, okay. We'll wait for 5 more minutes and we'll start the session if anyone else is joining. Also, I had forwarded some sums for homework. It seems none of you have sent those sums except Pooja, I think. Viren, Rakesh, have you solved the sums? Please let me know in the chat section. Darshan and Pooja, you were not there in the last lecture, right?
Can you just ask your friends if any one of them are joining the meeting, or we shall start the session? Okay, till everyone joins, we should start the revision. We'll revise what we had done in the last class. Okay, so what we had done in the last class, which is the additional account that is to be created while solving or while making the partnership firms accounts. Just write in the comment section. We learned that we have to create one additional account, additional, which is the additional thing that we have to create while making a partnership firms account. Please comment in the chat section. Viren says PNL and appropriation, right? So we learned that जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बिटवीन द पार्टनर्स, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स वी हैव टू टेक इट इनटू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट? ओके, एंड वी तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये भी सीखा था कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म वो 6% पे अकाउंट होगा, और पीएनएल जो प्रॉफिट है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके अलावा सैलरी, कमीशन, remuneration, anything that is given to the partner will not be shown in the P&L appropriation account unless otherwise it is given in the agreement. और हमने ये भी देखा था कि चार्ज और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है। रेंट और ये जो भी एक्सपेंसेस है ये सब पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, और जो पार्टनर के एक्सपेंस है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेंट, स्टाफ सैलरीज ये सब हमको देना कंपलसरी है। जो एक्सपेंस जो हमको देना कंपलसरी है डिस्पाइट लॉस और प्रॉफिट वो पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, और जो हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं दैट गोज इनटू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको याद है? प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या अमाउंट्स जाते हैं, एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा था, ये सब देखा था। इस सेशन में हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व करेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, वो सारी इस सेशन में हम देखेंगे।
You all have to answer in the chat section. Okay, this will be there are a lot of sums that we are going to solve in this session, so make sure you actively answer in the chat section so that I can understand whether you have understood or not. तो फर्स्ट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, तो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें क्या क्या एंट्रीज पास करेंगे, ये तो हमने ओरली तो ऑलरेडी डिस्कस कर दी है. अब हम इसको एक अकाउंट के फॉर्म में बनाएंगे एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट तो हम जो नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करते हैं दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं, राइट. पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कौन कौन से अमाउंट आएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कौन कौन से अमाउंट आएंगे? Whatever the payments that we make to the partner will come on the debit side of the P&L appropriation account. P&L अकाउंट में हम जो एक्सपेंसेस थे जैसे रेंट एंड ऑल वो P&L के डेबिट साइड में डालते थे, टू रेंट एंड ऑल. वैसे ही यहाँ पे जो हम पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे जैसे इंटरेस्ट, सैलरी जो भी है वो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे. सो व्हाट विल, अभी हम एक एक जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, कैपिटल की, इंटरेस्ट की और सबकी, और उसका P&L अप्रोप्रिएशन में क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे. और जर्नल एंट्री सब आपको मेरे को बतानी है, ठीक है. So when we are paying interest on capital to the partners, what will be our journal entry? When we are paying interest on capital to the partners, तो उसके लिए क्या journal entry पास करेंगे? Anyone? ठीक है. 11th में हमने देखा था कि जब हम किसी को स्टाफ को सैलरी देते थे या किसी को इंटरेस्ट देते थे तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते थे उसके लिए? Guys, please comment in the chat section. When you used to pay something interest or salary to the staff or anyone, आप 11th में क्या journal entry पास करते थे? इलेवेंथ में आप जब किसी को स्टाफ को सैलरी या कुछ देते थे तो आपकी एंट्री होती थी सैलरी टू कैश. ठीक है, बट सैलरी टू कैश जो स्टाफ को थी उसको सैलरी टू कैश करते थे. लेकिन यहाँ पे हम पार्टनर्स को देने वाले हैं तो हम करने वाले हैं इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होगा. सो हमारी फर्स्ट एंट्री फॉर इंटरेस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर? जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी पार्टनर, सपोज पार्टनर ए है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर? Guys, you have to answer in the chat section. And also you have to participate. मैं जो भी पूछूं प्लीज आप चैट सेक्शन में, भले ही रॉन्ग होगा चलेगा बट एटलीस्ट एक बार आंसर करो, ठीक है. ओके, सो द फर्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इंटरेस्ट जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो उसकी ये एंट्री होती है. आपको पता है पीएनएल में हम जब कोई भी नॉमिनल अकाउंट्स होते थे जैसे एक्सपेंस या कुछ भी तो उसको क्लोज करके हम पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, राइट. जैसे अगर एक्सपेंस टू कैश होता था तो एक्सपेंस अकाउंट का जो एक्सपेंस का जो लेजर है उसको क्लोज करके हम उसमें जो बैलेंस होता था वो पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, पीएनएल टू एक्सपेंस करके. एम आई राइट? तो यहाँ पे अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे क्लोज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे.
तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी? P&L appropriation account debit to interest on capital account. Is that clear? First, you cannot see the screen. Okay, just a second. You can see the screen now? Can everyone see the screen now? ओके अगर आपको स्क्रीन या वॉइस में कुछ भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो. कैन वी गो फर्दर if everyone can see the screen? Okay. So our first entry when we pay interest on capital is interest on capital to partners capital account. सेम वैसे ही जो हम 11th में जर्नल एंट्रीज पास करते थे, तो अगर हम जो पीएन स्टाफ या किसी को एक्सपेंस दे देते, लाइक हमको अगर इंटरेस्ट टू स्टाफ देना है तो हम इंटरेस्ट टू कैश कर देते. यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो हम उसमें वो ट्रांसफर करेंगे. तो आवर फर्स्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा. हम 11th में क्या करते थे, हमारा जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते थे जैसे रेंट डेप्रिसिएशन, उसको क्लोज करके हम उसका बैलेंस पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. यहाँ पे हम पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो सेकेंड एंट्री विल बी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Please let me know in the chat section. Pooja says no. Pooja, क्या query है आपकी? Pooja, you can unmute and ask me. So this is our second entry. Now यहाँ पे P&L appropriation account आया है, right? तो इसका ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका हम लेजर में भी ट्रांसफर करेंगे. तो ये पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी. ये सब 11th में हम जो करते हैं वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. हम एंट्रीज पास करते हैं और उसको लेजर में पोस्ट करते हैं. वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट एंट्री का तो हमने कोई अकाउंट बनाया नहीं है तो वो कहीं पोस्ट नहीं होगी. अभी हम फिलहाल सिर्फ जो पीएनएल लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसी में एंट्रीज पोस्ट करेंगे. सेकेंड एंट्री इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा. तो वन विल बी दिस. और क्या क्या हम पार्टनर्स को देते हैं? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उसके अलावा हम पार्टनर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा हम पार्टनर्स को क्या देते हैं? प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन. पूजा सेज प्रॉफिट, करेक्ट पूजा. और उसके अलावा हिरेन, तुषार, संयम, लॉस, करेक्ट. We also give salaries to the partner, right? तो सैलरी हम अगर पार्टनर को देंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी? प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन. अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी? अगर हम पार्टनर को सैलरी टू पार्टनर, बोनस, या तुषार से सैलरी टू कैश. एनीवन एल्स? सी सैलरी टू कैश हम कब एंट्री पास करते हैं? जब कोई हम किसी और थर्ड पर्सन स्टाफ या इसको दे रहे हैं तो हम सैलरी टू कैश करते हैं. यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है तो हम डायरेक्टली कैश के बदले वो सैलरी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हैं.
तो द एंट्री इज सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे कैश हट जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज पार्टनर के पास पैसा जा रहा है, उसका कैपिटल बढ़ रहा है, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड सैलरी विल बी डेबिटेड. इज दैट क्लियर? तो आपकी सेकेंड एंट्री फॉर आपकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? सैलरी स्लैश बोनस स्लैश कमीशन टू पार्टनर्स डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. यहाँ पे हम जो भी पार्टनर्स को देते हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि पार्टनर्स के पास पैसा जा रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, यानी उनका क्रेडिट साइड बढ़ रहा है, तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है. यहाँ पे कैश और ये सब क्रेडिट नहीं होगा. अच्छा, ये बताओ कि सैलरी और सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, रियल, ये सब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना. तो सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सो पूजा सेज बिजनेस प्रोवाइड सैलरीज टू द पार्टनर. हाँ, करेक्ट. सैलरी अकाउंट वीरेन सेज नॉमिनल अकाउंट. करेक्ट. तो नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं, हम उसको क्लोज करके कहाँ ट्रांसफर करते हैं? P&L, राइट. तो यहाँ पे भी सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ सैलरी पार्टनर्स को जा रही है, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और इसकी एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. सेम कॉन्सेप्ट है. पहले हम वहां पे नॉमिनल अकाउंट क्लोज करके P&L में ट्रांसफर करते थे. यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट्स है उसको क्लोज करके हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, राइट? तो ये सैलरी अकाउंट की पोस्टिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी होगी. तो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे टू सैलरी ये सब आप अपने बुक्स में भी लिख सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है. ठीक है. और हम पार्टनर्स को क्या देते हैं? प्रॉफिट, एज राइटली सेड बाय पूजा. इसके अलावा पार्टनर्स ड्राइंग करते तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो सकता है, राइट? अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग की है और हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डाला है कि हम इस पे 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो पार्टनर्स जो हमको इंटरेस्ट देंगे, अभी तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो उसकी हम एंट्रीज पास कर रहे हैं और उसको P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे दिखा रहे हैं. लेकिन जब पार्टनर्स हमको ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे, वी विल गेट इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विदड्रॉ किया है, ठीक है, उस पर 6% इंटरेस्ट लगाया हमने, तो हमको इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर, मतलब पार्टनर के पास से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? एनीवन? सी, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं तो हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स के पास पैसा जा रहा है, तो उनका क्रेडिट साइड का अमाउंट बढ़ रहा है. पर अगर पार्टनर्स हम ड्राइंग कर रहे हैं, हमसे फर्म से पैसा ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं,
तो इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है, इंटरेस्ट फर्म के पास आ रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर टू इंटरेस्ट, करेक्ट वीरेन। उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स हमको पैसा दे रहे हैं तो उनका पैसा कम हो रहा है, तो उनका अकाउंट डेबिट हो रहा है। और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रहा है, तो हम क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है। तो हमारी ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, this will be debited, this will be credited। अच्छा, अब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नॉमिनल अकाउंट है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नॉमिनल अकाउंट है? यस, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी हमको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा क्लोज करके। सिंस ये हमारी इनकम है, इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी आवर एंट्री? प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन। अभी इंटरेस्ट अकाउंट जो है, ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। विल हैव टू क्लोज इट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे, वैसे यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स है, ठीक है, एक तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास कर दी। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको क्लोज करके उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। Interest on drawings to P&L appropriation account. So interest on drawings will be debited, P&L appropriation account will be credited. अभी इसकी पोस्टिंग हम P&L appropriation account में भी करेंगे। Since interest on drawings is our income, पार्टनर्स जब भी पैसा विड्रॉ करते, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर्स फर्म से पैसा ले रहे हैं, तो वो पैसा उनके पास रहेगा, तो उस पर वो इंटरेस्ट फर्म को देंगे। तो वो जो इंटरेस्ट हमको दे रहे हैं वो फर्म की इनकम हुई, तो सिंस इट इज इन इनकम, वो क्रेडिट साइड पे आएगी। बाय यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है और एनीवन हैज डाउट? ठीक है, सो विल गो। अभी हमने क्या देखा कि पीएनएल में क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट हो रहा है, सैलरी, यहाँ पे सैलरी मतलब बोनस, कमीशन, जो भी ट्रांसफर होगा सबकी एंट्री सेम होगी, ठीक है। सिर्फ नेचर ऑफ पेमेंट चेंज हो रहा है, एंट्री चेंज नहीं हो रही। आप बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो पार्टनर को, वो आपका एक्सपेंस ही रहेगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी थर्ड चीज आती है टू जनरल रिजर्व। अब आप बोलोगे मैम आपने हमको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, सैलरी देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, आपने ये तो नहीं बताया जनरल रिजर्व क्या होता है। एनीवन हैज अ आइडिया कि जनरल रिजर्व क्या होता है? व्हाट इज अ रिजर्व? सी, रिजर्व, नाम रिजर्व का मतलब कुछ बचा के रखना, ठीक है। हम कुछ बचा के रखते तो हम उसको बोलते कि हमने उसको रिजर्व करके रखा है, हम उसको बाद में यूज करेंगे। रिजर्व का जनरल सेंस में ये मतलब होता है कि हम कुछ चीज है उसको बचा के रखते हैं और फिर उसको बाद में यूज करेंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि जो अपना नेट प्रॉफिट है, उसमें से पार्टनर्स बोले कि इस नेट प्रॉफिट, सपोज अपना नेट प्रॉफिट है 1000,
पार्टनर्स बोले कि इसमें से जो 10% है वो हम में से कोई भी नहीं लेगा, हम इसको बचा के रखेंगे, फिर फ्यूचर में हमको कभी भी जरूरत पड़ी तो हम इसमें से लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है कि पार्टनर्स बोले कि 10% हम इसको बचा के रखेंगे, तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। एंड फिर लेटर ऑन जब भी पार्टनर्स को चाहिए रहेगा तो वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उस रिजर्व में से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनीथिंग दैट यू रिजर्व, दैट यू कीप असाइड टू यूज इट इन फ्यूचर, तो आप उसके लिए एक रिजर्व बनाते हो। तो अगर पार्टनर्स बोल रहे हैं कि हमको 1000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें से 10% हम साइड में रखेंगे, इसको हम रिजर्व करके रखेंगे और हम इसको बाद में यूज करेंगे, तो उसको जनरल रिजर्व बनाते हैं। और ये जनरल रिजर्व आपके लायबिलिटीज साइड में पार्टनर्स कैपिटल के नीचे दिखता है। तो इसकी एंट्री भी क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब ये जो प्रॉफिट है इसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। जितना भी परसेंट पार्टनर्स के एग्रीमेंट में लिखा होगा उतना परसेंट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस इज अ न्यू एंट्री, इसको आप याद रखना कि अगर कुछ पैसा ऐसा है जो पार्टनर्स सोचते हैं कि हम उसको बाद में यूज करेंगे और उसको रिजर्व करके रखते हैं, तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और उसकी एंट्री होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व अकाउंट। एंड लास्ट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एंट्री क्या होगी? ये तो बहुत इजी है, सेम एंट्रीज है सबकी। जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? आफ्टर पेइंग सैलरी कमीशन ट्रांसफरिंग टू द जनरल रिजर्व, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, राइट, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, उसको हम पार्टनर्स के बीच में एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब पैसा पार्टनर्स के कैपिटल में जा रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। एम आई करेक्ट? पार्टनर टू प्रॉफिट, वीरेन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? व्हेन यू आर गिविंग प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, पार्टनर्स विल बी डेबिटेड। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे तो उसका बैलेंस कम होगा। सी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एंट्री देखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिखता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पैसा बढ़ रहा है तो उस अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड बढ़ रहा है। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करोगे तो क्रेडिट साइड कम हो रहा है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल कम हो रहा है। प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में जा रहा है, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? If you're transferring profit to the partner's capital, is partner's capital increasing or decreasing? Please answer. आप अगर प्रॉफिट इन विरेन से इंक्रीजिंग, अगर पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट, सो क्रेडिट साइड हैज टू इंक्रीज, यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट टू देम, so your entry will be P&L appropriation to partners capital account credit, P&L डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो ऐसे ही करते थे, जब आप नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट में, तो आप क्या एंट्री पास करते थे? P&L टू सोल प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। एम आई करेक्ट?
Is everyone understanding? See, we'll revise the entries once again. See, तो जब है जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री पास करते हैं क्योंकि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है. फिर वो इंटरेस्ट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट उसको क्लोज करते हैं, तो उसका जो बैलेंस है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है. तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. द सेम इज विथ सैलरी commission. Again we are paying to the partners, so salary commission being an expense will be debited to partners capital account credited. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में पैसा पार्टनर्स से ले रहे हैं, वो हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. और जो बचा कुछ प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको हम पार्टनर्स में जब ट्रांसफर करेंगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, बिकॉज प्रॉफिट हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो उनका बैलेंस बढ़ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, so the capital account will be credited. Is that clear everyone? क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा? If it, please let me know in the comment section so we can move on to the question and answers. हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा. Shall we start with the question and answer? Viren, Tushar, please let me know in the comment section. Can we start with the question and answers? Okay, so we'll move on to our first question. Can everyone see the question? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे बट आप लोग ने किए नहीं है, तो हम लोग ये आज सारे मिलके सॉल्व करेंगे. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000, rent expense of 5,000, interest on loan from partner 3,000 and commission 2,000 to the partners have not been charged to the net profit. Find out what is the correct net profit and the profit to be distributed to the partners. तो इसमें करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या है? What is the correct net profit? Net profit of the firm is 50,000. Rent expense of 5,000, interest on loan from partner 3,000, commission 2,000 have not been charged to net profit. मतलब ये net profit में charge नहीं हुआ है, net profit में deduct नहीं हुआ है. What is the correct net profit and the profit to be distributed to the partners? What is the correct net profit? Please reply in the chat section. Can everyone see the answer question? Guys, you have to answer. Net profit of the firm is 50,000, rent expense of 5,000, interest on loan from the partner 3,000 and commission 2,000 have not been charged to the net profit. What is the correct net profit and the profit to be distributed to the partners?
Please reply in the chat section. What is the correct net profit? रेंट एक्सपेंस 50,000 है, वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड नहीं है, तो नेट प्रॉफिट करेक्ट है क्या? नहीं, रेंट एक्सपेंस नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होने चाहिए। तो 50,000 में से 5,000 लेस होंगे, लेस 5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर 3,000, जो पार्टनर्स को हमने लोन दिया है उस पे जो इंटरेस्ट है उसका वो भी डिडक्ट होगा नेट प्रॉफिट में से, बिकॉज इट इज ऑल्सो चार्ज टू पीएनएल। तो लेस 3,000। कमीशन टू द पार्टनर, वो नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा क्या? नहीं, बिकॉज कमीशन टू द पार्टनर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, वो नेट प्रॉफिट में नहीं कैलकुलेट होता है। So what will be your correct net profit? 5,000 minus 50,000 minus 5,000 minus 3,000, that is 42,000. This will be your correct net profit. And what will be the profit to be distributed among the partners? ये जो 42,000 है इसको आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाओगे और उसमें से पहले आप कमीशन टू द पार्टनर्स उसमें से डिडक्ट करोगे। तो दिस विल बी minus 2,000, which will be 40,000. So 40,000 will be the amount that you will be distributing among the partners, and 42,000 is your correct net profit. Am I clear? Darshan Sayam, please reply in the chat section. Can we move on the second sum? Shall we move on to the second sum? So this is our second sum, profit and loss appropriation account. यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, इसमें हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट टू कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये सब अमाउंट दिया है, और हमको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल। उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है, अ फर्म हैज टू पार्टनर्स ए एंड बी, above given is the profit and loss appropriation account of the firm. There is no partnership agreement. There is no partnership agreement. इस लाइन को ध्यान से देखना. Find out the profit to be distributed to the partners. फर्म के पास दो पार्टनर्स हैं, वहां पे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, कमीशन दिया है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है पार्टनर से, पर फर्म के पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा? फाइंड आउट द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. What will be the profit that will be distributed among the partners? What will be the profit to be distributed among the partners?